Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Today now we are going to discuss another cell division that is known as meiosis. Meiosis takes place in germinal cell. In previous lectures I discussed about the two type of cell. The first is the germinal cell, another is the somatic cell or body cell. The mitotic division takes place in the body cell, but the meiotic division takes place in the germinal cell. Germinal cells are those cells which is responsible for the formation of gamete. So this type of cell is known as germinal cell. For example, in case of human being, testis and ovary, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो टेस्टिस and ovary both are germinal cell where gametes are produced, that is known as sperm and ovum, and both are haploids, and testis and ovary both are diploids. So with the help of meiotic division, one diploid cell produces say 4 haploid cells. This is a very important property. It takes place in the germinal cell. One parent cell that is known as diploids produces 4 haploid daughter cell. It is also known as reduction division. Why it is called a reduction division? Because the chromosome number की अगर हम बात करें from parents to daughter cell की अगर हम बात करता हूँ, daughter cell just half. Here is the 2n and here is the n. इसीलिए इसको रेडक्शन डिवीजन के भी नाम से देते हैं कि वन डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस से हैप्लॉयड सेल, मीन्स क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन हाफ. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ द पेरेंट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, 46 क्रोमोसोम, इन द डॉटर सेल only contain 23 chromosomes number. Just the chromosomes number remain half from parent to offspring parent to daughter cell. So this type of division is known as a reduction division. It is also known as gametic division, because they play a very important role for gamete formation. One scientist coined the term meiosis Farmer and Murray in 1905 coined the term meiosis. Meiosis completed into 2 parts. Number 1, meiosis 1 and number 2, meiosis 2. Meiosis second. Meiosis first is also known as heterotypic division. And the meiosis second is homotypic division. First of all, discuss about homotypic and heterotypic. Heterotypic मतलब the daughter cell is not exactly to the parent cell, but in here the parent cell and daughter cell, both the cells are exactly similar shape and size as well as chromosomes number, but in here changes takes place. So which type of changes takes place in meiosis 1? Number 1, pairing of homologous chromosome, pairing
of homologous chromosome crossing over between sister chromatids, and third, a reduction of chromosomes number, a reduction of chromosome number. Three type of changes takes place in meiosis 1, and this type of changes only takes place in meiosis 1, not takes place in the meiosis 2. So meiosis 2 is a type of mitotic division. There is no any changes inside the nucleus on the basis of the chromosomes. The first of all discuss meiosis 1. Meiosis 1 again divided into two parts, karyokinosis and cytokinosis. Division of nucleus, division of cytoplasm. The karyokinesis again divided into 4 stages: prophase 1, prophase first, metaphase first, anaphase first, and telophase first. Prophase first is the longest phase and complicated phase. They again further divided into 5 substages. Number 1, leptotene, zygotene, pachytene, fourth, diplotene, and last is dikinesis. तो आप यहाँ पर देखो, द प्रोफेज फर्स्ट इन meiosis 1 is the very longest phase. They as well as complicated phase, they again divide into 5 substages. The first is the leptotene, second is the zygotene, third is the pachytene, and fourth is the diplotene, and fifth is the dikinesis. Then I will discuss one by one details. Now first of all discuss leptotene. First of all, what is the meaning of leptotene? Leptotene is made up of 2 words. Leptos means thin and thread-like appearance. Here is the diagram of the leptotene. In the leptotene stage, inside the nucleus, chromosomes are thin thread-like appearance. Chromatin network contains then start condensation, long, thin and thread-like appearance. The chromosome consists only 2 chromatids appear as a single thread-like structures seen in the leptotene stage. When the cell enter into the zygote stage,
यहाँ पर आप उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स थे, हियर इज द टू डिफरेंट कलर ऑफ द क्रोमोजोम, वन इज द पैटर्नल एंड अदर इज द मैटरनल। बोथ द क्रोमोजोम दे आर पेयर्ड विथ ईच अदर, एक पास पास आ जाते हैं, पेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम बिकॉज ऑल द क्रोमोजोम्स आर सेम चार्ज, निगेटिवली चार्ज, दे आर रिपेल विथ ईच अदर। वो आपस में कभी पास नहीं आएंगे, पेयर नहीं करेंगे, वो दूर होना चाहेंगे। तो उनको पास कौन ला रहा है? तो इनके बीच में एक प्रोटीन्स का फॉर्म होता है एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन and these proteins play a very important role for pairing of homologous chromosome in the zygote stage। तो zygote stage में क्या हुआ कि सारे जो अगर हमारे अगर ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करते हैं, इन ह्यूमन एवरी सेल कंटेन्स 46 क्रोमोजोम्स नंबर। तो कितने पेयर होंगे? 23 पेयर्ड जो होंगे वह टेक्स प्लेस इन द zygote स्टेज विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आफ्टर दैट पैचिन स्टेज, when the cell enter into the Pachydin stage where condensation takes place, where duplication of the chromosome, therefore each chromosomes consist 4 chromatids। अभी तक इसके पहले हमने क्या देखा? each chromosome consist only 2 chromatids, but in here but not clearly seen in the diplotin stage the chromatids are clearly seen, count the chromatids very easily, but in here the each chromosome contains 4 chromatids, 4 chromatids हो जाते हैं। आफ्टर दैट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोजोम दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने जाइगोटिन में देखा पेयरिंग होता है, जब पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में ब्रेकेज एंड रीयूनियन टैक्स प्लेस। यहाँ पर ब्रेक होती है एंड रीयूनियन बनती है टू फॉर्म ए रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स एंड द रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल for the exchange of genetic material that is known as crossing over and this specific point और ये point जो होती है and this specific points is known as chiasmata और chiasmata। इसको हम क्या बोलते हैं? chiasmata बोलते हैं, जो कि वहाँ पर but chiasmata are not clearly seen in the Pachydin stage। in diplotin stage some changes takes place inside the nucleus, means first of all जो होमोलॉगस क्रोमोजोम जो डिप्लोटिन में सॉरी जाइगोटिन में जो पास आ गए थे दे आर रिपेल विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज डिसिनेप्सिस। ऐसा क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इन बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोजोम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आर टोटली डिसअपियर, जो पास लाती थी वो गायब हो जाती। देयरफॉर एंड बोथ द होमोलॉगस क्रोमोजोम, बोथ द क्रोमोजोम ऑफ ए होमोलॉगस रिपेल विथ ईच अदर, दूर जाना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर वो फंसे रहते हैं, जहाँ जहाँ पर क्रॉस पीस बनाते हैं, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, दिस पॉइंट्स आर क्लियरली सीन दैट इज नोन एज चियाज्मा। उसी को हम क्या बोलते हैं? चियाज्मेटा आर क्लियरली सीन इन दिस स्टेज। इन केस ऑफ एम्फीबियन oocytes के केस में अगर हम देखे जाएँ तो ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोटिन इज द वेरी लॉन्गेस्ट, बहुत बड़ा होता है, नियर अबाउट मंथ और ईयर तक पड़े रहते हैं एंड दिस स्टेज इज नोन एज डियोक्टियोस 3 स्टेज। इन जनरल जाए माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन जो होता है कंप्लीटेड विद इन 1 आवर्स, एक ही आवर्स में होता है। तो ये सब सारे जीवन मिनटों में चलते हैं। बट इन केस ऑफ एम्फीबियन oocytes में अगर देखा गया डिप्लोस्टिन स्टेज ड्यूरेशन आर वेरी वेरी लॉन्गर इन कंपेरिजन टू द अदर सेल्स, नियर अबाउट मंथ टू ईयर्स तक जाता है एंड दिस स्टेज इज नोन एज डिक्टियोटेन स्टेज। एज वेल एज द सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूव टू द अपोजिट पोल, इन बिटवीन देम स्पिंडल फाइबर्स आर डेवलप शुरू हो जाते हैं। इन द डाइकाइनेसिस स्टेज, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज टर्मिलाइजेशन। इसमें क्या कहा है? द सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस प्रोसीड एट द चियाज्मेटा तक, वह जहाँ जहाँ क्रॉस पीस है उस पर प्रेशर लगता है एंड गेट शिफ्टेड टू द एंड ऑफ द क्रोमोजोम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिलाइजेशन। में क्या होता है? जैसे कि ये होमोलॉगस क्रोमोजोम्स हैं, ये ऐसे मेनी पॉइंट्स पर क्रॉस पीस बना रहे हैं, दिस इज द चियाज्मेटा, ये चियाज्मेटा है। ये अब इसमें जब टर्मिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है इसमें, तो जो बीच वाले जो चियाज्मेटा होते हैं वह डेमिनिश हो जाएंगे प्रेशर लगने से, केवल पेरीफेरी रीजन की चियाज्मेटा आर क्लियरली। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज
टर्मिनलाइजेशन। तो इसमें बीच में जितने भी मेनी जो चियाजमेटा जो क्रॉस पीस बनते हैं, ऑल द क्रॉस पीस आर ब्रेक ड्यू टू द प्रेशर एंड दिस process is known as terminalization, as well as nuclear membrane. Nucleolus are completely disappear at this stage. Spindle fibers are formed, वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं. Here is the prophase 1 of meiosis 1. In metaphase first, spindle fibers form. Spindle fibers form. आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म इन प्रीवियस लेक्चर. देयर आर 3 टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर क्लियरली सीन इन द मेटाफेज स्टेज. हियर इज द क्रोमोजोमल फाइबर. क्रोमोजोमल फाइबर एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू क्रोमोजोम तक जो एक्सटेंड करता है, दैट इज नोन एज क्रोमोजोमल फाइबर. हियर इज द एस्ट्रल फाइबर. एस्ट्रल फाइबर रेज टू द पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेल, ये भी हमने बात बताया. और कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू पोल, जो एक से दूसरे पोल से कनेक्ट होते हैं. तो दिस फाइबर इज नोन एज कंटिन्यूअस फाइबर, ऑल पोलर फाइबर्स. तो विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑल द क्रोमोजोम्स अरेंज्ड ऑन इक्वेटर. क्रोमोजोम अरेंज्ड ऑन इक्वेटर. इक्वेटर सारे बीच में आ जाते हैं, मीन्स ऑल द पेयर्ड क्रोमोजोम. अगर ह्यूमन बीइंग का है तो 23 पेयर्स अरेंज्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द सेल इन द मेटाफेज स्टेज. एज वेल एज क्रोमोजोम्स आर हाईली कंडेंस. क्रोमोजोम्स हाईली कंडेंस एंड थिक and clearly with the help of microscope as well as count the chromosomes numbers very easily. तो मेटाफेज एक स्टेज ऐसा स्टेज होता है जिसमें क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस, थिक एंड शॉर्ट हो जाते हैं, एंड यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वेरी इजली एज वेल एज काउंट द क्रोमोसोम्स नंबर्स वेरी इजली. नेक्स्ट इज एनाफेज 1. एनाफेज 1. इन द एनाफेज 1 में क्या हो रहा है? homologous chromosome separate with each other with the help of इंटरजोनल फाइबर एज वेल एज क्रोमोजोमल फाइबर. तो क्रोमोजोमल फाइबर क्या करेगा? उस होमोलॉगस क्रोमोजोम्स का एक क्रोमोजोम एक पोल की तरफ खींच कर ले जाएगा, दूसरे क्रोमोजोम्स को दूसरी तरफ ले जाएगा. इट मीन्स अगर 46 क्रोमोजोम दे आर अरेंज्ड ऑन द सेंटर, अगर वो सेंटर्स में है तो 23 क्रोमोजोम्स मूव वन पोल एंड 23 क्रोमोजोम्स मूव अनदर पोल. तो ऐसे सेपरेशन हो रहा है. तो ओनली 1 क्रोमोजोम्स, तो क्या हो रहा है? ओनली 1 chromosome of pairs reaches a pole की तरफ जाता है. नॉट ए बोथ, दोनों नहीं जाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो गया? रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स नंबर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रिडक्शन ऑफ क्रोमोजोम नंबर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनाफेज 1. जब कभी भी कोई पूछे कि वह कौन सा स्टेज मियोसिस 1 का है जिसमें क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ होंगे, तो वह कौन सा होगा? एनाफेज 1. तो एनाफेज 1 में आपने क्या देखा कि सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम्स ईच अदर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ओनली 1 क्रोमोजोम्स ऑफ ए पेयर मूव टू द रीचेस टू द पोल, और दूसरे पोल की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन द chromosomal fiber, with the help of certain chromosomal fiber as well as interchromosomal fiber or interzonal fiber. They are seen in between the chromosomes के बीच में आता है during एनाफेज स्टेज. दे क्या करता है? दे पुशिंग करता है the chromosome toward the opposite pole. Telophase first. Next is telophase first. This is the 4th point. In telophase first, chromosomes
chromosomes reaches a pole, form two daughter nuclei, nuclear membrane and nucleolus both are reappear. Chromosome thin thread like, similar to the प्रोफेज। तो आपने क्या देखा, इन द टेलोफेज स्टेज आप देख सकते हो कि वन न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई में हो रहा है कि विच टाइप ऑफ चेंजेस, मतलब जब ये पोल की तरफ जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस बोथ आर रीअपियर, सेंट्रियोल डिवाइडेड इनटू टू में, फिर हियर अगेन सेंट्रियोल डिवाइडेड इनटू टू। इन द सेंटर एरिया इन द इक्वेटर ऑफ द सेल फरो टेक्स प्लेस, यहाँ पर दबना चालू हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम पिंच ऑफ देन प्रोड्यूसेस ए टू डॉटर सेल एंड बोथ द डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। ये क्या हो जाएंगे, दोनों बोथ आर हैप्लॉइड। तो क्रोमोजोम थिन एंड थ्रेड लाइक, जो पहले मोटे कंडेंस थे वो थिन और थ्रेड लाइक हो जाते हैं। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। साइटोकाइनेसिस, तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इन एनिमल सेल में क्या हो रहा है, एनिमल सेल जो सेल मेम्ब्रेन फरो होती है टू फॉर्म टू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब अंदर की तरफ वो दबेगी और दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सेल प्लेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माइटोटिक्स। सेल प्लेट्स इज इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ daughter cell, not daughter nuclei, daughter cells, and the cell plate is also form a daughter cell in case of the plant, but both daughter cell, ये दोनों daughter cell जो होते हैं always haploid, ये कैसे होंगे, haploid होते। तो at the end of meiosis 1, अगर meiosis 1 के अगर हम end में देखें तो one parent cell that is known as 2n produces two daughter cell and both the daughter cells are haploid and genetically they are vary with the parent cell because the recombinant DNA are formed ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो इससे जो डॉटर सेल्स होंगे इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पेरेंट से थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि इन द पैकेटिन स्टेज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, देयरफॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म। तो वह कैसा डीएनए हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म ऑन बोथ द डॉटर सेल। इस देयरफॉर द डॉटर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द क्रोमोजोम नंबर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर उसके क्रोमोजोम नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी डिफरेंसेस मिलेगा। इन द पेरेंट सेल हैविंग 46 क्रोमोजोम्स नंबर, इन डॉटर सेल हैविंग 23 क्रोमोजोम्स नंबर, एज वेल एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर फॉर्म इन द डॉटर सेल इन कंपैरिजन टू द पेरेंट सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।